أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 43 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا، واستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، عنہا، ان سے، لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے، لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ولا يدخلون، اور نہ ہی وہ داخل ہوں گے، الجنت، جنت میں، حتی، یہاں تک کہ، یلجا، داخل ہو جائے، الجمل، اونٹ، فی سم، ناکے میں، سم کہتے ہیں ناکے کو، سوئی کا ناکا ہوتا ہے اسے ناکا کہتا ہے، ٹھیک ہے، الخیاط، سوئی کے، الخیاط، سوئی کے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اونٹ کیا ہو جائے، سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المجرمین، جرم کرنے والوں کو، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المجرمین، جرم کرنے والوں کو، لہم، ان کے لیے، من جہنم، جہنم میں سے، مہاد، بچھونا ہوگا، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر سے، غواش، اوڑھنا ہے، اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، الظالمین، ظلم کرنے والوں کو۔ والذین، اور جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے کیے، الصالحات، نیک عمل، لا نکلف، ہم پابند نہیں بناتے، نفسا، کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی ہمت کے مطابق، اس کی ہمت کے مطابق، اولئک،
यही लोग हैं अस्हाबुल जन्नह, जन्नत के साथी। उलाइका, यही लोग जन्नत के साथी हैं। हम फीहा, वो उसमें खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमाल किए, हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से बढ़कर पाबंद नहीं बनाते, वही लोग हैं अहले जन्नत, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। वनज़अना, वनज़अना, और हमने खींच लिया, माँ वो जो फी सुदूरिहिम, उनकी सीनों में है, मिन गिल्लिन, कीना, तजरी, बहती होंगी, मिन तहतिहिम, उनके नीचे से, अलअनहार, नहरें। वक़ालू, और वो कहते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, अल्लज़ी, जिसने हदाना, हमें हिदायत दी, लिहाजा इसकी, वमा कुन्ना, और हम ना थे, लिनहतदिया, की हिदायत हासिल करते, यानी अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत ना देता तो हम कभी हिदायत याफ्ता ना होते। लौला अन हदान अल्लाह, अगर ना होता ये कि हिदायत दी हमें अल्लाह ताला ने, यानी हमने उनके दिलों से कीना निकाल देंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो कहते होंगे कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत ना देता तो हम कभी भी हिदायत याफ्ता ना होते। लक़द जाअत, अलबत्ता यकीनन आ गया, रसूल रब्बिना, आ गए, रसूल रब्बिना, हमारे रब के बहुत से पैगंबर, बिलहक, के हक के साथ। वनूदू, और वो आवाज दिए जाएंगे, अन ये के, तिलकुमुल जन्ना, ये है तुम्हारी जन्नत, उरिस्तुमूहा, तुम वारिस बनाए गए इसके, बिमा कुंतुम तामलून, किस वजह से, इसलिए कि जो तुम अमल करते रहे। यानी यकीनन हमारे रब के पैगंबर हक बात लेके आए थे, और उन्हें पुकार कर कहा जाएगा कि ये रही तुम्हारी वो जन्नत जिसका तुम्हें उन अमाल की वजह से वारिस बनाया गया, जो तुम करते रहे, जो तुम करते रहे। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ तर्जुमा समझ में आ गया होगा। तो इससे पहले जो असबाक हमने पढ़े थे, उन आयात में दो फरीकों का जिक्र हो चुका, अब दोनों का अंजाम बताया जा रहा है। दोनों का क्या किया जा रहा है? तकजीब करने वालों का बुरा अंजाम और ईमान लाने वालों का अच्छा अंजाम जो है वो बताया जा रहा है। इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को जुटलाया। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तफसीर है फख्रुर राजी, तफसीर कबीर के नाम से, ठीक है, तकजीब की तमाम सूरतें इसमें शामिल है। वो ये फरमाते हैं, नीस मुशरिकीन और दहरी अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी सिफात को जुटलाते हैं, मुशरिकीन अल्लाह ताला की वहदानियत के दलाइल को जुटलाते हैं, और बाज़ लोग अंबिया की नबूवत के दलाइल को तस्लीम नहीं करते। कुछ लोग क़यामत के वकू और मुहासबे के अमल का इनकार करते हैं। वस्तकबरू अन्हा, और तकब्बुर करते हैं इसमें, तो इसमें तौहीद, रिसालत और क़यामत, इससे मुतालिक तमाम तकज़ीबात शामिल है। तो फरमाया कि जो लोग हमारी आयतों को जुटलाते हैं और तकब्बुर करते हैं, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और न वो जन्नत में दाखिल होंगे।
हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में से गुजर जाए। तो ऐसे लोगों का जन्नत में दाखिला इतना ही मुश्किल है जितना ऊँट का साई के नाके में से गुजर जाना। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आसमान के दरवाजे ना खुलने का मतलब यह है कि मुकज़्ज़िबीन और मुतकब्बिरीन के अमाल न तो ऊपर आसमान की तरफ जाएंगे और ना ही कबूलियत का दर्जा पा सकेंगे। बास कहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। तो इस आयत की तशरीह में वह हदीस भी मौजूद है जिनमें अरवाह का जिक्र किया गया है कि जब कोई आदमी फौत हो जाता है तो उसकी रूह को लेके फरिश्ते आसमान की तरफ जाते हैं। फरिश्ते उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देते हैं और उसे मरहबन यानी खुशामदीद कहते हैं। फिर उस रूह को आसमानों से गुजार कर इल्लियीन के मकाम पर ले जाते हैं। फिर उसका रब तालम बरज़ख में कब्र के साथ भी रहता है और उससे सवाल जवाब होते हैं। लेकिन जब काफिर मुशरिक या मुनाफिक की रूह को लेके फरिश्ते आसमानों की तरफ जाते हैं तो फरिश्ते उसके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खोलते और हुक्म होता है कि उसे सिज्जीन में ले जाओ। तो उन्हें निहायत दिल्लत के साथ वापस कर दिया जाता है। आसमान के दरवाजे न खुलने का यही मतलब है कि उनके लिए बख्शिश के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो इस आयत करीमा में मुहाल अमर के लिए ऊंट और सुई की मिसाल फरमाई गई है कि हाथी के बाद ऊंट सबसे बड़ा जानवर शुमार होता है। लेकिन चूंकि ऊंट हाथी के मुकाबले में दुनिया के अक्सर इलाकों में ज्यादा पाया जाता है और लोग उससे मानूस भी है और उससे तरह तरह के काम भी लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ऊंट का जिक्र किया गया। और इसके मुकाबले में सुई के नाके का तज़किरा छोटी चीज के तौर पे किया गया। मतलब ये कि जिस तरह एक बड़ी चीज छोटी चीज में दाखिल नहीं हो सकती, इसी तरह अल्लाह ताला के नाफरमानों की कामयाबी मुहाल और नामुमकिन है। तो सम सुई के नाके को भी को कहते हैं और ये लफ्ज जहर के लिए भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह सुई किसी चीज में आसानी से घुस जाती है, इसी तरह जहर भी इंसानी साख्तों में आसानी से दाखिल होकर कल्ब पे असर करता है और इंसान की हलाकत का बाइस बनता है। सुई का नाका भी बारीक होता है और जहर में भी बारीक नसों में घुस कर अंदर असरअंदाज होने की सलाहियत होती है, इसीलिए उसे सम कहते हैं। बहरहाल फरमाया कि जिस शख्स का खात्मा कुफर और शिर्क पर होगा वो अल्लाह ताला की रहमत के मकाम में दाखिल नहीं हो सकता। व कज़ालिका नज्ज़िल मुजरिमीन, फरमाया कि हम मुजरिमों को इसी तरीके से जजा देते हैं। अल्लाह ताला ने मुजरिमीन का अंजाम बयान फरमाया है कि उनके लिए रहमत के दरवाजे नहीं खुलेंगे बल्कि उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। लहुम मिन जहन्नम मिहाद, उनके लिए जहन्नुम में बिछोने की जगह होगी। मिहाद और इसी से महद भी है, महद मिनल महदी इलल लहदी, गहवारे को कहते हैं जो बैठने या लेटने की जगह है। मतलब ये कि ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम होगा। वमिन फौक़िहिम गवाश, और ऊपर से पर्दे होंगे। गाशिया पर्दे को कहते हैं जो ऊपर से ढांप लेता है। यानी उनका बिछोना जहन्नुम और ऊपर पर्दे भी ऐसे ही होंगे, गोया उनका ओढ़ना और बिछोना जहन्नुम से ही इबारत होगा। वकदालिका नज़्ज़ि ज़ालिमीन, हम जुल्म करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। कुफर और शिर्क सबसे बड़े मजालिम है तो इनकी भी सजा बड़ी सख्त होगी। तो यहाँ तक नाफरमानों का हाल बयान कर दिया। अब अहली ईमान के लिए इनाम का जिक्र कर रही हैं। वल्लज़ीना आमनू, के जो लोग ईमान लाए उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात और तौहीद को तस्लीम किया, मआद पे ईमान लाए, तमाम दलाइल को कबूल किया और किसी साबित शुदा चीज़ का इनकार नहीं किया, अपने अकीदा और फिक्र को पाक किया और उसके साथ साथ वामिलुस्सालिहात, नेक अमाल भी अंजाम दिए।
नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह का एहतमाम किया, जिहाद और दीगर उमूर खैर में हिस्सा लिया, तो उनकी बुनियाद दुरुस्त हो गई। फरमाया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, हम किसी शख्स को तकलीफ माला युताक में मुब्तला नहीं करते, इंसानों पर कोई ऐसे अहकाम नाजिल नहीं करते जो उनकी इस्तिताअत से बाहर हो, बल्कि हम तो सीधे साधे ईमान और अमल सालेह का हुक्म देते हैं, और फिर जो लोग इन अहकाम को तस्लीम करके उन पर अमल पेरा हो जाते हैं। फिर आगे फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्नह, यही लोग जन्नत वाले हैं, वो अपने जद्द अमजद की विरासत जन्नत के हकदार ठहरेंगे। हुम फिया खालिदून, वो उस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और कभी वहां से निकाले नहीं जाएंगे, उनकी ईमान और अमल सालिह की यही जजा होगी। फिर फरमाया कि हम अहले जन्नत पे एक खास इनाम ये करेंगे, वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, कि हम उनके सीनों में से कदूरत को निकाल लेंगे। ये लफ्ज जो है गिल, गल और गुल तीनों तरह पढ़ा जाता है। गिल बुग़्ज़, इनाद और नफरत कदूरत को कहा जाता है। गल झूठ और धोखे के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि गुल ये तोक को कहा जाता है, जिसकी जमा अगलाल है। मतलब ये कि किसी जन्नती के दिल में बुग़्ज़, नफरत के जज्बात नहीं होंगे, तमाम जन्नती पाकीज़ा अखलाक वाले होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तमाम जन्नती का क़ल्ब रजुलिन वाहिद, एक आदमी के दिल की मानिंद होंगे। ला तबागुज़ बैनहुम, उनके दरमियान बुग़्ज़, नफरत या कदूरत नहीं होगी। कि जिस तरह एक दिल में एक ही बात समा सकती है, इसी तरह सारे के सारे जन्नतियों के क़ुलूब में एक ही तरह की अच्छाई होगी। किसी के दिल में अदावत और नफरत की कोई बात नहीं होगी। और अगर इस दुनिया में किसी के दिल में किसी दूसरे भाई के खिलाफ बुग़्ज़ और इनाद का कोई मादा मौजूद था, तो जन्नत में भेजने से पहले हम उसे निकाल लेंगे। तो कदूरत जो है, नफरत जो है, तबई भी होती है, अखलाकी भी। तबई कदूरत जो है नेक आदमियों में भी हो सकती है। जैसा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि दुनिया की जिंदगी में हमारा हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से इख्तिलाफ राय भी रहा, लेकिन वो भी साहिब ईमान थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत सब सहाबा कतई तौर पे जन्नती है, और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो चुकी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे आपस की ये जो कदूरतें हैं ये इसी जुमरे में आएंगी, और हम हर किस्म की कदूरत से पाक साफ होकर जन्नत में जाएंगे। हदीस शरीफ में ये भी आता है कि जब जन्नती पुल सिरात से गुजरेंगे तो उसके एक हिस्से से गुजरते हुए अहले ईमान की तमाम कदूरतें, लेन देन वगैरह वही खत्म हो जाएंगे, वो सब गिल से पाक होकर जन्नत में जाएंगे। तो फरमाया ऐसे लोग जन्नत में पहुंचेंगे तो जन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके सामने नहरें बहती होंगी, यानी उनकी कोठियों, महल्लात और बागात के दरमियान नहरें जो है रवा दवा होंगी, जो उनके लिए अजीब निशात और सुरूर का बायस होंगी। और फिर इज़हार तशक्कुर के तौर पे वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, वो यूँ कहेंगे कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने यहाँ तक हमारी रहनुमाई फरमाई, हमें इस मुक़द्दस मकाम तक पहुँचाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह, अगर अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से हमें हिदायत ना देता तो हमारी क्या ताकत थी कि हम हिदायत पा सकते। गोया जन्नती उस हिदायत को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करेंगे जिसे पाके वो उसकी रहमत के मकाम तक पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जन्नत में दाखिले का हकीकी सबब अल्लाह ताला की रहमत है,
मुख्तलिफ उमूर के ज़ाहिरी असबाब भी होते हैं और हकीकी भी। जन्नत में पहुंचने के लिए अमाल सालिहा ज़ाहिरी सबब है, जबकि अल्लाह ताला की रहमत उसका हकीकी सबब है। अल्लाह ताला ही ईमान और अमाल सालिहा की तौफीक देता है, बुराइयों से बचने की तौफीक देता है। अगर उसकी तौफीक शामिल हाल ना हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। चुनांचे शोएब अलैहिस्सलाम ने यही कहा था, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, मेरी तौफीक अल्लाह ताला ही की मदद, अल्लाह ताला की मदद ही की मरहून मन्नत है। तमाम अंबिया की यही तालीम है कि जब तक अल्लाह ताला तौफीक ना दे कोई काम अंजाम नहीं पा सकता। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वस्बिर वमा सब्रुक इल्ला बिल्लाह, आप सब्र करें मगर सब्र की तौफीक भी अल्लाह ताला ही देगा। मकसद ये कि जन्नत में जाने का हकीकी सबब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अमाल अगरचे ज़ाहिर असबाब है लेकिन इनको भी नजरअंदाज नहीं किया गया। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, अमल के मुताबिक हर एक के दराजात होंगे। जितने किसी के अच्छे अमाल होंगे उतनी ही दराजात बुलंद होंगे। हदीस शरीफ में बादल गरजने और चमकने की हकीकत बयान की गई है। साइंसदान उसका ज़ाहिरी सबब ये बयान करते हैं कि पानी से बोझल बादल जब आपस में टकराते हैं तो उससे बिजली और कड़क पैदा होती है। लेकिन हदीस शरीफ के मुताबिक उसका हकीकी और बातिनी सबब यह है कि अल्लाह ताला का फरिश्ता जब बादलों को कोड़ा मार के हाँकता है तो उससे चमक और गरज पैदा होती है। मकसद ये कि दोहरे असबाब में से ज़ाहिरी असबाब तो नजर आते हैं लेकिन बातिनी और हकीकी असबाब नजरों से ओझल रहते हैं। ज़ोहर की नमाज के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि ये नमाज जरा ताखीर से पढ़ो, फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नुम की तपिश से है। तो यहाँ भी ज़ाहिरी सबब तो सूरज है लेकिन इसका बातिनी सबब जहन्नुम है। तो बहरहाल अहले ईमान अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिसने उन्हें उसके मकाम रहमत तक पहुंचाया, और इस बात को तस्लीम करेंगे कि उन्हें हिदायत का रास्ता अल्लाह ताला ही की तौफीक से मुयस्सर आया। तो हर वक्त अल्लाह ताला ही से तौफीक मांगनी चाहिए। जब जन्नती अपने मकाम पे पहुंच जाएंगे तो फिर वो उस सबब का जिक्र करेंगे जिसकी बिना पे वो उस आला मकाम में पहुंचे। कहेंगे लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, अलबत्ता तहकीक अल्लाह के रसूल ठीक बात लेके आए हैं। हमने उनकी बात को तस्लीम किया, उनके बताए हुए रास्ते पे चले, अल्लाह ताला की वहदत पे ईमान लाए, आमाल सालिहा अंजाम दिए और इस मकाम तक पहुंचे। जन्नती कहेंगे कि अल्लाह के रसूल बिल्कुल सच कहते थे। और फिर वनूदू, उनको पुकारा जाएगा कि ईमान वालों। पुकारने वाला कौन होगा? हदीस शरीफ में फरिश्ते का जिक्र आता है, वो कहेगा कि अहले जन्नत अंतिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा, ये है तुम्हारी जन्नत, तुम्हें जो तुम्हें विरासत में दी गई है उस चीज के बदले में, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम किया करते थे। यानी तुमने दुनिया में फमन तक़वा व अस्लह के मिस्दाक, तकवा इख्तियार किया, इस्लाह की, कुफर शिर्क निफाक और बुराई से बचते रहे, अच्छे अमाल अंजाम दिए, तुम कामयाब हो गए हो, ये जन्नत तुम्हें अता की गई है। बाद मुफस्सिरीन विरासत का एक दूसरा माना भी बयान करते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि हर शख्स के दो ठिकाने हैं, एक जन्नत में और एक दोज़ख में। आलम बरज़ख में ये दोनों ठिकाने इंसान को दिखा दिए जाते हैं। तो अगर वो साहिब ईमान है तो उसे जन्नत वाला ठिकाना दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि अगर तुम ईमान न लाते तो तुम्हें दोज़ख वाला ठिकाना मिलता। इसी तरह काफिर और मुश्रिक को दोज़ख में उसके ठिकाने पे पहुंचाया जाता है और उसे बताया जाता है कि अगर वो ईमान ले आता तो उसे जन्नत वाला फुला ठिकाना मिलता। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मोमिन को जन्नत में उसका अपना ठिकाना भी मिल जाता है और काफिर का वो ठिकाना भी हासिल होता है जो उसे ईमान लाने की सूरत में मिलता। इसी तरह काफिर को दोज़ख में उसका अपना मकाम भी हासिल होता है और उस मोमिन का मकाम भी जो ईमान न लाने की सूरत में उसके हिस्से में आता है। इस तरह गोया ईमानदारों को काफिरों की और काफिरों को अहले ईमान की विरासत मिल जाएगी। और पुकारने वाला अल्लाह ताला की जात भी हो सकती है जो मोमिनों को जन्नत की विरासत की खुशखबरी सुनाएगी। बाहर अल्लाह ताला की रहमत के मकाम जन्नत में पहुंचने का हकीकी सबब उसकी मेहरबानी, शफकत और रहीमियत होगी, और फलाह का हकीकी मदार इसी पर है। अल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत की तरफ ले जाने वाले अमाल हमारे लिए आसान बनाए।
دنیا اور آخرت میں اس قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا ہمارے لیے باعث نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا ہے، سکون کا ذریعہ بنا ہے ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ، والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔